And also, and there's also an important part of this nuclear physics part of A2 physics, and that is related to the radioactivity, right? So, first of all, we are just going to discuss what actually radioactivity is. So, you would have definitely studied this radioactivity part in your IGCSE as well, a little bit part in your particle physics in AS as well. But let's explore in detail what does the radioactivity decay means. So, actually, you know, we have just seen previously that certain nucleuses, yes, certain elements are having the nucleuses which are unstable. They are having less binding energy per nucleon present in them. So if there is less binding energy per nucleon of any nucleus, it is going to be towards more instability. So what happens? Naturally, there are certain elements present जो कि अपने आप को like they are converting like unstable nuclei are converting themselves into a more stable nuclei, right? There are certain nuclei which are unstable in nature and they are converting themselves into a more stable form, and during this conversion the actual nuclei is decaying. During this process, what is happening? The actual nucleus या nuclei is decaying. It is vanishing. Decay का मतलब खत्म हो रहा है, vanish हो रहा है. It is decaying and new nuclei is formed. And new nuclei is formed. एक नया nuclei जो है वो पैदा हो जाता है जो कि ज्यादा stable है. But with the formation of this additional nuclei or new nuclei or daughter nuclei, there is an emission of radiations as well. The radiations are also being produced in this process. And what are the radiations emitted? Radiations are alpha rays, beta rays, and gamma rays. These are the end products of a radioactivity. So रेडियोएक्टिविटी में हो क्या रहा है कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई कन्वर्ट करता है अपने आप को एक मोर स्टेबल न्यूक्लियाई में प्लस विद एन एमिशन ऑफ alpha, beta, and gamma radiation. So such process of disintegration of a nucleus is known as radioactive decay. So how you are going to write down the definition for the radioactive decay in exam? This definition do appear. So write down about this stuff. The spontaneous disintegration, the spontaneous disintegration. अब यहाँ पे एक word add कर लीजिएगा of an unstable nuclei, ठीक है, of an unstable nuclei to form a more stable nucleus resulting in the emission of alpha, beta, and gamma particles is known as radioactive decay. It is known as what? It is known as radioactive decay. Is this understandable? What does the term radioactivity means? Yes, students. Hello, please speak up. Is the term radioactive decay understandable? That Yes, sir. it is a process in which unstable nuclei is converting itself into a more stable one. Plus, it is with this conversion, it is emitting alpha, beta, and gamma particles. So, can anyone quickly tell me what are these alpha, beta, and gamma particles? Uh,
One is alpha particle is what? It is just like a helium nuclei, like He4 and 2. It is carrying two protons and two neutrons. So I'm not going to go into the depth of the further properties of alpha particle. Or it's a positively charged particle. इसके ऊपर positive 2 charge है. Then we have another particle emitted which is called as beta particle. Beta negative की बात कर लेते हैं. It is just the stream of electrons. These are what? These are the stream of electrons. And what are gamma particles? Gamma particles are electromagnetic radiation. Gamma particle is electromagnetic radiation made of photon. Made of what? It is made of photons. So gamma rays is basically it's an electromagnetic radiation which is made up of photons. Beta particles stream of electrons and alpha ones are the helium nuclei. You must be knowing about these basic terms of alpha, beta and gamma. अच्छा आगे चलते हैं. Shall I wrap this part? Hurry up, please speak up. Shall I wrap this remaining part? These students tell me, shall I move on? Yes, sir. Okay, what next is happening here? मैं इनको मिटाता हूँ ताकि मैं further explanation. Shall I write here? Okay, जी. Next thing is detection of radiations. So how are actually radiations being detected? जो रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ रेडियोएक्टिव डिके, वो कैसे डिटेक्ट होती हैं? उसके लिए एक डिवाइस यूज की जाती है, डिटेक्टर यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है जी एम ट्यूब. GM tube means Geiger Muller tube. G stands for Geiger, M stands for Muller tube. अब होता इसमें ऐसे है कि let's say there is going to be some radioactive source. ठीक है, this is a radioactive source. ये जो ब्लॉक है और ये इसको शील्ड किया हुआ है विद लेड. यू नो ना कि किसी भी रेडियोएक्टिव मटेरियल को लेड से रोका जा सकता है ताकि वो बाहर की तरफ ना फैले. इट इज डेंजरस. अच्छा, इसके सामने क्या होता है? इसके सामने गिगर मोलर ट्यूब पड़ी हुई होगी. गिगर मोलर ट्यूब का एक रफ सा स्केच मैं बना रहा हूँ. दिस इज अ डिटेक्टर जो डिटेक्ट करेगा जितनी भी रेज या रेडिएशंस निकल रही हैं और इसके ऊपर फॉल आउट कर रही हैं. ये डिटेक्टर आगे जुड़ा हुआ होता है काउंटर के साथ. ठीक है, इट इज कनेक्टेड टू अ काउंटर. और काउंटर क्या काउंट करता है? ये रेडिएशन काउंट करता है. लाइक इट इज डूइंग इन काउंट्स पर सेकेंड. और इसके दूसरे यूनिट ये भी हो सकते हैं काउंटर के. इट कैन बी काउंट्स पर मिनट. तो कोई भी बात आप कह सकते हो. तो इसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही होती है. इसके ऊपर इस तरह डिजिट्स शो हो रहे होते हैं. 2
60, लेट्स से 2, कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैंने एग्जांपल वे में लिखी है, 262, 300, 500, 450, 490, 488, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ये काउंट रेट बता क्या रहा होता है? जैसे कोई रेडिएशन एमिट होती है और वो रेडिएशन आके हिट करती है इस डिटेक्टर को, तो आपका जो काउंटर है वो वन वैल्यू टॉप अप हो जाता है। तो इस तरह काउंट टिकल करता जाता है एंड इट इंक्रीजेस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द this count rate, increase value of count rate? तो जैसे ही एक न्यूक्लियस डिके करेगा, तो वो एक रेडिएशन एमिट करेगा, और जो रेडिएशन जैसे ही इससे पिच होगी, डिटेक्ट होगी, तो वो डिके होने के बाद आपकी एक वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि एक काउंट पर सेकंड या एक काउंट पर रेट हमें क्या बता रहा है कि वन ऑफ द न्यूक्लियस हैज, एक गिवन सैंपल के अंदर एक न्यूक्लियस जो है वो क्या कर गया, डिके कर गया, चेंज हो गया दूसरे फॉर्म में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? So this value which is being shown on the detector is called as, ये जो वैल्यू है इसको ये बोली जाती है काउंट रेट। दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज काउंट रेट। तो यहाँ पे लिखी हुई भी है, द रैंडम नेचर ऑफ रेडियोएक्टिव डिके कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ऑब्जर्विंग द काउंट रेट ऑफ जीएम वैल्यू। तो ये काउंट रेट जो है ना, रैंडमली चेंज होता रहता है, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी, रेंडमली चेंज होता रहेगा, 262, 263, 500, 400, so on so forth. So when a GM tube is placed near a radioactive source, the counts are found to be irregular and cannot be predicted. Each count represents a decay of an unstable nucleus. ये जो हर काउंट है ना, लेट से 262 से 263 हो गया, इसका मतलब कि एक और न्यूक्लियस डिके हो चुका है, एक और अनस्टेबल न्यूक्लियस डिके हो चुका है। These fluctuations encountered on GM ट्यूब प्रोवाइड करता है हमें कि ये जो रेडियो एक्टिव डिके का प्रोसेस है, ये कैसा प्रोसेस है, ये एक रैंडम प्रोसेस है। सो रेडियो एक्टिव डिके के दो बिहेवियर्स हैं। रेडियो एक्टिव डिके के दो बिहेवियर्स हैं। वन इज दिस प्रोसेस इज रैंडम, एंड अदर इज दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट डज द वर्ड स्पॉन्टेनियस, हाउ यू कैन से दैट रेडियो एक्टिव डिके इज स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम। सो रेडियो एक्टिव डिके स्पॉन्टेनियस भी और रैंडम भी है, इससे क्या मतलब है? तो स्पॉन्टेनियस होने का क्या मतलब है कि it is having no effect of the external factors, it has no influence of the external factors। आगे लिखी हुई है ये नोट्स में बातें, मैं आपको बताता हूँ। स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द, और इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो गए? यानी कि रेडियो एक्टिविटी पे प्रेशर, टेम्परेचर, एक्सटर्नल प्रेशर का कोई खास फर्क नहीं है। और रैंडम होने का क्या मतलब है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने टाइम में डिके हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Sir, what does random mean again? मैं आगे बता देता हूँ, रैंडम की पूरी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है नोट्स में। अभी तक ये डिटेक्ट कैसे होते हैं रेडिएशंस, इज दिस अंडरस्टैंडेबल? ये इसमें कोई रिपीट करने वाली बात है तो मुझे बता दीजिए। शैल आई मूव ऑन? Yes, sir. जी, बाकी स्टूडेंट्स प्लीज आप लोग भी बोलें ताकि मुझे पता चल सके यू आर प्रेजेंट इन द क्लास और नॉट। हेलो? यस मायरा, इज इट अंडरस्टैंडेबल? Yes, sir. Okay, so if we just check the graph for this count rate with respect to time, so what is actually happening? The continuously count rate is decreasing with time. और इसकी हर वैल्यू के अंदर जो आपके पास ये फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, ये फ्लक्चुएशंस क्या शो कर रही हैं? ये फ्लक्चुएशंस शो कर रही हैं कि दिस रेडियो एक्टिव प्रोसेस इज अ random process. So fluctuations in the results of the count rate is representing that radioactive is a random process.
यानी कि वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिकेज एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम ऑफ डिके। तो आगे चलता हूँ। तो व्हाट डज द रेडियोएक्टिव डिके इज, सर मैंने अभी बताया रेडियोएक्टिव डिके की दो प्रॉपर्टीज हैं, आइदर इट्स गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस और इट्स गोइंग टू बी रैंडम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस? अ प्रोसेस व्हिच कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी लिख सकते हो और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। एनी ऑफ द प्रोसेस which is not influenced by the external factors, environmental factors, such process is called as spontaneous. So spontaneous process कौन सा होता है? Spontaneous process is a process which cannot be influenced by the environmental factors. ऐसा process जो किसी भी external factor से, और what are the external factors? Like it can be temperature, pressure, some chemical condition. And what is the meaning of random process? It is defined as a process in which exact time of decay of a nucleus cannot be predicted. हम predict नहीं कर सकते कि exactly ये 5 मिनट बाद जो है वो डिके होगा या 50 मिनट बाद डिके होगा या कितनी देर। ये एक randomly एक हम calculated value लगाते हैं। So a process in which the exact time of decay of nucleus cannot be predicted is called as a random process. ये दोनों बातें बच्चों आपने लिखनी है अबाउट द स्पॉन्टेनियस वन, ये रेडियो एक्टिव डिके स्पॉन्टेनियस होता है और रेडियो एक्टिव डिके इज रैंडम। ये एग्जाम बातें हैं, एग्जाम में पूछी भी जाती हैं ये बातें। रेडियो एक्टिव डिके इज अ स्पॉन्टेनियस डिके, व्हाट इट मींस, एंड रेडियो एक्टिव डिके इज अ रैंडम प्रोसेस, व्हाट इट मींस। The process which cannot be influenced by environmental factors or external factors. Such process is spontaneous, and a process which cannot be influenced by the which cannot be predicted, in which the exact time of decay is not predicted. So such process is actually a called as a random process. So इसकी वजह से हम किसी भी रेडियो एक्टिव डिके के लिए हर न्यूक्लियस का एक या हर एलिमेंट का एक वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं डिके कांस्टेंट। मैं नेक्स्ट उसके ऊपर बात करता हूँ। कि बच्चों चलूं मैं आगे। Yes, sir. ओके जी। नेक्स्ट अब हम रेडियो एक्टिविटी की फर्दर टर्म्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसपे हम सबसे पहली टर्म को डिस्कस करेंगे, व्हाट इज अ डीके कांस्टेंट। And then we are going to study another term which is called as activity. Activity basically radioactivity को ही कहा जा रहा होता है, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। So since radioactive decay is a spontaneous and random process, so it is useful to consider the average number of nuclei which are expected to decay per unit time. तो हम ये नहीं कहते कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इतने ही डिके करेंगे, हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, एक एवरेज बता रहे होते हैं कि एवरेज नंबर ऑफ न्यूक्लियस एक रेडियो एक्टिव सैंपल के अंदर जो मौजूद हैं वो क्या होते जा रहे हैं, डिके होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं, कन्वर्ट होते जा रहे हैं, डीफॉर्म होते जा रहे हैं किसी स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर।
और इसको बोला जाता है एवरेज डिके रेट। सो एज अ रिजल्ट, हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी कि यूरेनियम की बात करूं, एमरीशियम की बात करूं, पोलोनियम की बात करूं, और जितने भी नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो रेडिएशंस एमिट करते हैं और जो अनस्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट हैं और वो मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो रहे हैं, they actually are emitting the radiations and they are called as radioactive isotopes या radioactive elements। जितने भी radioactive elements हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है that is called as decay constant। Every radioactive element is having a property which is called as decay constant। और ये decay constant क्या बताता है कि what are the chances कि एक individual nucleus decay करेगा per unit time। ये हमें डिके कांस्टेंट क्या बता रहा होता है, प्रोबेबिलिटी बता रहा होता है। इट इज टेलिंग अस द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल न्यूक्लियस विल डिके पर यूनिट टाइम। एक रिस्पेक्टिव टाइम के अंदर एक इंडिविजुअल डिके कितने, जो इंडिविजुअल न्यूक्लियस जो है वो डिके होगा पर यूनिट टाइम। तो कितने चांसेस हैं कि आपका एक न्यूक्लियस डिके कर जाएगा एक रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड के अंदर, इट इज कॉल्ड एज डिके कांस्टेंट। और हर एलिमेंट के लिए ये एक वैल्यू कांस्टेंट होती है, फिक्स्ड होती है। लाइक यूरेनियम के लिए ये वैल्यू फिक्स्ड होगी, रेडॉन के लिए ये वैल्यू फिक्स होगी, रेडियम के लिए ये वैल्यू फिक्स होगी, पोलोनियम के लिए ये फिक्स होगी, एमरीशियम के लिए ये फिक्स होगी। तो हर एक एलिमेंट के लिए कांस्टेंट वैल्यू डिके वैल्यू होती है, एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू इज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज डिके कांस्टेंट। और ये डिके कांस्टेंट क्या बता रहा होता है कि हर एलिमेंट का एक टाइम प्रिडिक्ट कर रहा होता है, कितने टाइम बाद ये डिके कर जाएगा। ठीक है, कितने टाइम बाद ये डिके कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज डिके कांस्टेंट। सो हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन द डिके कांस्टेंट, this is the definition of decay constant: the probability that an individual nucleus will decay per unit time is called as decay constant। or what is the symbol of decay constant? It is represented by a symbol lambda। लाइक इन वेव्स वी यूज इट फॉर वेवलेंथ, इसी तरह हम न्यूक्लियर फिजिक्स में लैम्डा बोलते हैं डिके कांस्टेंट को। सो डिके कांस्टेंट is represented by a symbol called as lambda, represented as lambda। So probability that an individual nucleus will decay per unit of time is known as decay constant। So इसका मतलब ये हुआ कि when a sample is highly radioactive, जितना ज्यादा रेडियो एक्टिव होगा, इट मीन्स के नंबर ऑफ डिकेज पर यूनिट टाइम उतने ज्यादा होंगे। तो ये हमें सजेस्ट करता है कि एक्टिविटी बहुत हाई है। तो राइट डाउन अ न्यू टर्म की आप हेडिंग देंगे एक्टिविटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिविटी? इन रेडियो एक्टिविटी के अंदर एक टर्म हम यूज करते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी हमें ये बता रहा है कि लेट से अगर एक रेडियो एक्टिव सैंपल के अंदर कोई 50 न्यूक्लियसेस हैं, या 70 न्यूक्लियसेस हैं, या 1000 न्यूक्लियाई हैं, ठीक, तो कितने न्यूक्लियाई डिके कर रहे हैं पर यूनिट टाइम में, एक स्पेसिफिक टाइम में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एक्टिविटी। तो एक्टिविटी को क्या कहा जाता है? एक्टिविटी को डिफाइन कैसे किया जाता है? द नंबर ऑफ डिकेज पर यूनिट टाइम। ठीक है, द नंबर ऑफ डिकेज पर यूनिट टाइम क्या है? और इसको क्या एक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है? Activity is represented by a symbol capital A। और हमारे पास फॉर्मूला क्या है एक्टिविटी का? एक्टिविटी is equals to decay constant multiply by number of nuclei, undecayed nuclei। Capital N stands for number of nuclei remaining in a sample। So A stands for activity, A stands for activity, lambda stands for decay constant, और डिके कांस्टेंट क्या है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है किसी भी एक एलिमेंट की डिके होने के पर यूनिट टाइम। एंड व्हाट इज एन? एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग इन अ सैंपल। ठीक है, ए स्टैंड्स फॉर एक्टिविटी, लैम्डा स्टैंड्स फॉर डीके,
N stands for number of nuclei remaining in a sample. तो एक सैंपल के अंदर कितने न्यूक्लियाई रह जाते हैं, बच जाते हैं, दैट इज नोन एज नंबर ऑफ remaining number of nuclei in a sample. And lambda is called as decay constant and A stands for activity. अच्छा, यहाँ पे आपको नेगेटिव लैम्डा एन का साइन शो होगा। नेगेटिव सिर्फ ये बता रहा है कि वक्त के साथ साथ जो रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो कम होते जाते हैं, तो हम नेगेटिव को अपनी कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है द माइनस साइन इंडिकेट्स दैट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग डिक्रीजेस विद टाइम। तो ये ऑब्वियस सी बात है, रेडियो एक्टिविटी हो रही है तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई डिके होते जा रहे हैं, तो जो पीछे रहते जा रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे। so that is represented by negative sign. So negative sign को हम अपनी कैलकुलेशन में यूज नहीं करते, so you have to keep this formula in your mind that activity is equals to lambda into n. Lambda stands for decay constant and stands for number of nuclei remaining in a sample. So activity is equals to decay constant multiplied by remaining number of nuclei. A is equals to lambda times n. Activity is equals to lambda times n. Is this student, is this fine? So the decay constant is defined as probability that an individual nucleus will decay per unit time. This is fixed for each type of element. हर element के लिए constant value है. And what is activity? That how many decays are taking place per unit time. So activity is calculated as number of decayed nuclei divided by time. Activity को यूं भी आप कह सकते हैं number of decayed elements per unit time. And activity is equals to lambda times n. Yes, people, shall I move on? You must write down these definitions with you. जी बच्चों, आगे चलूं प्लीज बताइए। वी आर हैविंग ओनली 7 minutes फॉर दिस सेशन। Yes, sir. Okay, so now let's see the example how we can use these formulas in our calculations. So this example says that americium is 241. It is an artificially produced radioactive element and it emits alpha particles. A sample of americium 241 is having a mass of 5.1 micrograms, which is found to have an activity of 5.9 into 10 power 5 becquerel. Okay, मैंने आपको एक बात नहीं बताई, एक्टिविटी के जो SI यूनिट्स है ना, द SI यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी वो क्या है? इट इज कॉल्ड एज becquerel. BECQUERELS, becquerels, BQ. ठीक है, SI यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज becquerels. और 1 becquerel का क्या मतलब है? एन एक्टिविटी ऑफ 1 becquerel इज इक्वल्स टू एक डिके हुआ 1 सेकंड में। ठीक है, 1 nucleus has decayed in 1 second. So if one decay happens in 1 second, then activity is called as, the activity will be equals to 1 becquerel. So becquerel is the SI unit of activity. और एक्टिविटी का मतलब क्या है कि कितने नंबर ऑफ डिकेज हुए कितने रिस्पेक्टिव टाइम में, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेज पर यूनिट टाइम।
So number of decays per unit time, number of decays per unit time is known as activity. Number of decays per unit time is known as activity. So SI unit of activity is called as becquerels, and becquerels is represented by BQ. So there's a question in front of us. Question says determine the number of nuclei in the sample of americium. तो कितने number of nuclei present है americium के sample में? हमने क्या find करना है? We have to find out the value of n. Okay. If we have to find out the value of n, so number of nuclei किसके equal हो जाएगा? Number of nuclei हम find कैसे करेंगे? हमें mass दिया हुआ है americium का. So number of nuclei हम थोड़ा thermodynamics जो चीजें पढ़ी थी वो हम discuss करते हैं. Mass in grams मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि हमने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फाइंड करना है, तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ न्यूक्लियाई चलेंगे. सो मास इन एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मास नंबर कह लें या मॉलिक्यूलर मास कह लें, मॉलिक्यूलर मास या न्यूक्लियॉन नंबर भी आप बोल सकते हो. तो मास हमारे पास कितना है? 5.1 इंटू 10 पावर -6. एवोगाड्रो कांस्टेंट हमारे पास कितना था? 6.02 इंटू 10 raised to power 23 whole divided by what is the molecular mass? It is 241. तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, एंड ये टोटल आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे 1.27 इंटू 10 raised to power 16. ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आपके पास आ जाएंगे. नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज इक्वल टू 1.27 इंटू 10 raised to power 16 न्यूक्लियाई. नेक्स्ट इट सेज डिटरमिन द डिके कांस्टेंट ऑफ द एम्ब्रीशियम. तो इसका मतलब हमने क्या फाइंड करना है? हमने लेमडा फाइंड करना है. तो हमारे पास एक्टिविटी वाला फॉर्मूला है, एक्टिविटी इज इक्वल्स टू डिके कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. तो अगर मुझे डिके कांस्टेंट फाइंड आउट करना है तो व्हाट आई विल डू, डिके कांस्टेंट इज इक्वल्स टू एक्टिविटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. So this lambda will be equals to what? Activity हमें कितनी दी हुई है? 5.9 into 10.5 becquerels. 5.9 into 10 power 5 becquerels whole divided by number of nuclei कितना आ जाएगा? 1.27 into 10 raised to power 16. So you are going to divide both of them and your answer will be 4.65 into 10 raised to power -11, and units of the decay constant is in per second, because this is the probability of the decay in unit time. So it will be either per second, per minutes, per hours, or per years. Any of the unit can be used for the symbol of lambda. And lambda stands for what? Lambda stands for decay constant. जी बच्चों, is this fine? How to find out the decay constant? Any confusion in it? Yes, student, please speak up. Yes, sir. आगे चलूं? Yes, sir. ओके नेक्स्ट, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस कि जो रेडियो एक्टिव डिके का नेचर है वो कैसा है? एक्सपोनेंशियली डिकेइंग है. यानी कि एक्सपोनेंशियली आपके जो नंबर ऑफ रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो कम होते जाते हैं. आपके एक्सपोनेंशियली जो है एक्टिविटी कम होती जाती है. आपकी एक्सपोनेंशियली जो है वो काउंट रेट, जो डिवाइस आपका डिटेक्ट करती है उसका काउंट रेट कम होता जाता है. तो इसका ग्राफ कैसे बन रहा होता है डिके रेट का? डिके रेट अगर आप नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिस्कस करें, लेट्स से इट्स टाइम and its number of nuclei, so its graph will be somewhat like this. ठीक है, इस तरह डिकेइंग ग्राफ होता है आपके रेडियो एक्टिव एक्टिविटी का.
और यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं, यहाँ पे आपके पास काउंट रेट भी हो सकता है, यहाँ पे आपके पास एक्टिविटी भी हो सकती है वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल डिके है। और जब आपके पास लेस स्टीप होगा तो इसका मतलब क्या है, देयर इज गोइंग द डिके कांस्टेंट विल बी स्मॉलर। और जब ज्यादा स्टीपर होगा आपके पास ये रेडियो एक्टिविटी का ग्राफ, तो इट मीन्स के डिके कांस्टेंट इज लार्जर। So there is high probability of the decay of nuclei per unit time। यानी कि ज्यादा नंबर ऑफ जो न्यूक्लियाई हैं या ज्यादा नंबर ऑफ आइसोटोप्स हैं वो डिके हो रहे हैं, रेडियो आइसोटोप्स हैं जो डिके हो रहे हैं पर यूनिट टाइम। सो मोर स्टीपर इज द ग्राफ, इट शोज higher is the or larger is the decay constant, and less steeper is the graph, it shows smaller is the decay constant। is this fine? तो यहाँ ग्राफ तक हम रुकेंगे, हमारा सेशन खत्म होने वाला है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम इसको फिनिश करेंगे। हार्डली एक दो छोटी सी बातें रह गई, एंड आवर न्यूक्लियर चैप्टर विल बी ओवर। इज दिस फाइन स्टूडेंट्स?